right, all right, everyone. Are we good to go? ठीक है. Okay. So till now we discussed about a lot of aspects related to the Freudian approach. Now I would like to ask you, okay, these are the basic theories given by Freud. ठीक है. Defense ego defense mechanisms were given by Anna Freud. ठीक है. And sometimes in entrances you will see that it is asked that what is the field of psychology that Anna Freud worked upon. So you will not answer psychoanalysis. The field that Anna Freud worked for, it is known as ego psychology. ठीक है. So always remember this very basic question. ठीक है. Now moving ahead, so we read about the various theories, various theoretical bases underlying these theories, but there are a lot of techniques also which are used in the therapeutic construct of psychoanalysis. So by now we understand कि Freud किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, to uncover the unconsciousness of the person, to what do we say, cope up with the anxiety of the individual. ठीक है. उनके जो जनरल सरफेस लेवल पे बिहेवियर है उनको ट्रीट करना. ठीक है. सो there are multiple techniques which are embedded in the theoretical underpinnings which have been given by Freud. So for one of them is free association. So have you read about Brewer? Does anybody know who is Brewer? जोसेफ ब्रूअर. सुना है किसी ने नाम जोसेफ ब्रूअर का? किसी ने भी नहीं सुना? ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ब्रूअर थे ही वॉज लाइक अ गाइड टू फ्रॉइड. ठीक है. क्योंकि फ्रॉइड पहले फिजिशियन एस्पेक्ट में थे. ठीक है. तो जो ब्रूअर थे और फ्रॉइड थे, दे बोथ वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हिप्नोसिस. ठीक है. सो देयर इन ब्रूअर लेड द फाउंडेशन कि हमें टॉकिंग थेरेपी या टॉकिंग क्योर जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ करना चाहिए. ठीक है. विच इज़ द फाउंडेशन फॉर फ्री एसोसिएशन. ठीक है. तो ब्रूअर हैज़ वर्कड अ लॉट इन रिगार्ड टू हिप्नोसिस, सो हैज़ फ्रॉइड. ठीक है. सो फ्री एसोसिएशन इज व्हाट? एक्सप्रेसिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स टू अ पर्सन's माइंड. ठीक है. विदाउट एनी ब्लॉकेज, विदाउट एनी फिल्टर. ठीक है. देन व्हेन यू अंडरस्टैंड फ्री एसोसिएशन, you will see first of all there will be a cathartic experience which a person will be going through. What is catharsis? Anyone? क्या होता है catharsis? In very layman language, मन की भड़ास निकालना. Yes, we can say that. So catharsis is when we read about cathartic. Yes, Nida. Mom, basically releasing the suppressed emotions. वेरी गुड. ठीक है. लेटिंग गो ऑफ दी सप्रेस्ड इमोशन. हमने कैथेसिक्स एक वर्ड पढ़ा था वेर इन वी वर सेइंग कि ऑल दी व्हाट डू वी से दी अटैचमेंट और दी एनर्जी दैट अ पर्सन इन्वेस्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है. या फिर जो इंस्टिंक्चुअल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कैथेसिक्स बोलते हैं. So in catharsis we will be letting go of those suppressed emotion जिनकी वजह से हमें कोई भी issues आ रहे हैं. ठीक है. So that is catharsis. So with the help of free association, the person will be experiencing a cathartic experience as well. ठीक है. Then a lot of time while a person is explaining, while a person is saying whatsoever comes to their mind, there might be expression of some sort of resistances also. तो resistance क्या है? जब एक इंसान के अंदर कुछ हिच है to express something, to refuse कर देंगे all together कि नहीं, I don't want to tell about all this memory etc. And in Freudian approach of therapy, it is very important to first of all outline or identify these resistances and then analyze these resistance and break these resistances further. क्योंकि फ्रॉइड ये बिलीव करते थे कि देखो जहाँ पे भी रेजिस्टेंसेस हैं वो ही मेन एरिया है जहाँ से अनकॉन्शियसनेस की वजह से इश्यूज हो रहे हैं.
ठीक है। सो फ्री एसोसिएशन जोसेफ ब्रूअर जब फ्रॉइड के साथ हिस्टीरिया के लिए काम करते थे, ठीक है, एंड फ्रॉइड ने इनिशियली हिप्नोसिस के लिए टेक्निक यूज़ की थी, बट हिप्नोसिस में वो फ्री एसोसिएशन ये सब काफ़ी यूज़ करते थे कि एक्सप्रेस, लेट द पर्सन एक्सप्रेस व्हाट्सएवर, बट लेटर ऑन हमें पता है हिप्नोसिस वॉज eradicated by Freud himself. He said that it is not a very empirical method, so he used the technique free association still in his therapeutic constructs. ठीक है, देन हम फ्रॉइडियन स्लिप की बात करते हैं. व्हाट आर फ्रॉइडियन स्लिप्स? जल्दी जल्दी से बता दो, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जल्दी से. व्हाट आर फ्रॉइडियन स्लिप्स? Anyone? ठीक है. फ्रॉइडियन स्लिप इज कि फॉर एग्जाम्पल एक ना एक्सपेरिमेंट भी था कि एक स्क्रीन होगी एंड देयर विल बी टू इंडिविजुअल एंड दे हैव टू से वट एवर यू नो वर्ड इज पॉपिंग आउट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो फ्रॉइड ने बोला देखो जो इंसान मे बी बाय मिस्टेक यू से समथिंग, ठीक है, और यू फॉरगेट समथिंग एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर एक स्लीप की स्पीच में लैप्स आ गया, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपके अनकॉन्शियस को. ठीक है, कुछ भी अगर वर्ड गलत बोल दिया या व्हेन यू वर विलिंग टू से समथिंग एंड यू सेड समथिंग एल्स, तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनस अनकॉन्शियस मोटिव और एंजाइटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एंड इसको हम फ्रॉइडियन स्लिप बोलते हैं. देन ओके, नाम यहाँ नहीं लिखा है, वेट. सो ही ऑल्सो गेव द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ड्रीम एनालिसिस. हमने पढ़ा था कि फ्रॉइड ऑल्सो रोट अबाउट दिस वन बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में. ठीक है, एंड ड्रीम एनालिसिस, फ्रॉइड बिलीव्स दैट ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू नोइंग अ पर्सन's unconscious. Let me add another slide and explain. So Freud said that whenever we are analyzing a person's dream, ठीक है, हम दो एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं. सो टू कंपोनेंट ऑफ ड्रीम एनालिसिस या टू एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रीम एनालिसिस. ठीक है, फर्स्ट इज मैनिफेस्ट कंटेंट एंड सेकेंड वन इज लेटेंट कंटेंट. सो इन मैनिफेस्ट कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक क्लाइंट आता है एंड दे टेल यू कि दिस वॉज द ड्रीम दैट आई सॉ, सो मैनिफेस्ट कंटेंट वर्क्स ओवर द ऑब्वियस एस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ पर्सन हु सॉ कि एक बियर था ड्रीम में एंड इट वॉज लाइक रनिंग टूवर्ड्स हिम एक्सेट्रा, तो दे आर गोइंग टू टेक द कंटेंट एज इट इज, जो है जैसा है. बट in latent or in the second aspect of dream analysis, we try to uncover the hidden meaning behind it. ठीक है, so dream analysis very very crucial. ठीक है, then comes transference. What is transference? Anyone, what is transference? आई एम वेरी श्योर कि सबने पढ़ा होगा ट्रांसफरेंस. क्या होता है ट्रांसफरेंस, जल्दी से बताओ. Ma'am, it is the feeling a client has for their counselor. It can be positive or negative. ठीक है, वेरी गुड. सो हम जब ट्रांसफरेंस को समझते हैं इन रिगार्ड टू थेरेपी और इन रिगार्ड टू साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस ये बोलता है कि ट्रांसफरेंस शुड बी देयर. ठीक है, सो ट्रांसफरेंस इज प्रोजेक्शन ऑफ प्रीवियस फीलिंग्स, ठीक है, थॉट्स दैट द पर्सन मे बी हैड फॉर समबडी एल्स. फॉर एग्जाम्पल मे बी कोई क्लाइंट है जिसको थेरेपिस्ट में लगता है कि वो ही इज़ माई फादर फिगर, तो जो भी प्रोजेक्शन है पहले की फीलिंग थॉट ऑफ समबडी एल्स और सब सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल इन देयर लाइफ, दे प्रोजेक्टेड ऑन टू दी थेरेपिस्ट. ठीक है, अब ये
पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. साइको एनालिसिस ये बिलीव करता है कि जब ट्रांसफरेंस होगा, व्हेन देयर इज अ प्रोजेक्शन, सो देयर विल बी बेटर अनकवरिंग ऑफ अनकॉन्शियसनेस. अच्छे से द इंडिविजुअल विल बी एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. तो जो रैपो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी एंड इट विल लीड टू अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस फॉर द क्लाइंट. ठीक है. नाउ जो ट्रांसफरेंस है उसका एक काउंटर पार्ट भी है जिसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस. Counter transference is wherein the therapist is projecting their feeling onto the client. ठीक है. एंड काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर काउंटर ट्रांसफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिसिस, वी स्टॉप द थेरेपी तभी, या फिर वी टेक सम अदर मेजर, या हम किसी और को रेफर कर देते हैं. एंड ट्रांसफरेंस में भी ऐसा नहीं है कि ट्रांसफरेंस हो गया एंड यू लीव द क्लाइंट ऐसे इन द मिडल. नो, यू हैव टू रिजॉल्व द ट्रांसफरेंस एज वेल. ठीक है. नाउ देर आर मैनी मोर थ्योरीज ऑल्सो विच आर देयर इन रिगार्ड टू व्हाट डू वी से फ्रॉइड. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ओरल टाइप पर्सनालिटी होती है, एनल टाइप पर्सनालिटी होती है. रोशाक पढ़ा है किसी ने? व्हाट इज रोशाक? रोशाक टेस्ट कंडक्ट किया है रोशाक. जब हम साइकोमेट्रिक्स पढ़ेंगे देन उस टाइम पे वी विल बी रीडिंग अबाउट पर्सनालिटी असेसमेंट्स. सो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हमारी अनकॉन्शियस को अनकवर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो जब आप रोशाक में पढ़ोगे तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ओरल टाइप ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है. जहाँ पे जो बंदा है वो ईटिंग ड्रिंकिंग वाले बहुत सारे रिस्पॉन्सेस देगा. ठीक है. या फिर वो जो अथॉरिटी बोलेगा उनकी बात ज़्यादा अच्छे से मानेंगे. ठीक है. एनल टाइप पर्सनालिटी, ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड के बारे में बात की. ठीक है. नॉट दैट क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू दी CUET एग्जामिनेशन. ज़्यादातर लोग मास्टर्स में और ज़्यादा इलाबरेट वे में पढ़ते हैं. ठीक है. फिर फ्रॉइड ने ये भी बिलीव किया कि 5 साल तक बच्चे की पर्सनालिटी जब फेलिक स्टेज में पहुंच जाता है तो जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो स्टार्ट हो जाती है फॉर्म होना. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द मेजर थ्योरीज. ठीक है. देर आर सर्टन अदर एक्सटेंशंस ऑल्सो. हम एना फ्रॉइड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एना फ्रॉइड हैज़ टॉक्ड अबाउट द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, बट देर आर फ्यू मोर थ्योरीज विच आर देयर. ठीक है. जिसको हम जब भी पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक कि इलेबरेशन के लिए आएगा, बट मे बी यू कैन बी आस्क्ड टू टेल कि ये थ्योरी किसने दी. ठीक है. सो देयर इज कंस्ट्रक्ट विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी. ठीक है. ये एक तरह से एक्सटेंशन है. जैसे ईगो साइकोलॉजी इज द एक्सटेंशन टू साइको एनालिसिस, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट रिलेशन की थ्योरीज हैं दे आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ द साइको एनालिसिस. इफ़ यू रिमेंबर, हमने अभी जब फ्रॉइड के बारे में पढ़ा था, वी रेड अबाउट कैथेसिक्स विच इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द साइकिक एनर्जी ऑन टू अ ऑब्जेक्ट. करेक्ट, पढ़ा है हमने. सो हेयर इन दिस ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरीज 2 फिलोसफर्स हैं. ठीक है. एक है कोहुट एंड another one is Klein, Melanie Klein. ठीक है. They have given 2 separate theory to tell us about the object relations which are there. ठीक है. So according to both of them, अगर हम object relation theory की बात करें, they are going to focus upon the relationship that the person is having with the object. जैसे अगर एक mother है, ठीक है, तो how like she is also an object of attachment for the child, so how they are satisfying their instinctual need. ठीक है. rather than the other needs which are there present. ठीक है. तो नाम आ सकता है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं आएगी, बस आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी क्या करता है. दे फोकस मोर अपॉन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट rather than the like instinctual drive which are there in a person.
ठीक है, क्योंकि फ्रॉइड की पूरी थ्योरी जो है वो इंस्टिंक्ट पे फोकस है, इड पे फोकस है, इड को ग्रेटिफाई करने पे फोकस है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉइड ऑल्सो हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू मदर चाइल्ड रिलेशनशिप सारे के सारे एस्पेक्ट्स में. ठीक है, एंड बस एक एक वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. Kahoot has elaborated a lot on self objects. ठीक है, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों की थ्योरी में, सो दैट इजीली आप कर पाओ डिफरेंशिएट. ठीक है, सो कोवुट बिलीव्स दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जो भी इंसान, जो भी फॉर एग्जांपल जो इन्फेंट है और जो सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है, दे विल बी हैविंग a basic relationship which will be focused upon the initiation, integrating with the ambition, the ideas formulated by those people. जैसे बच्चे की जो सबसे प्राइमरी सेल्फ ऑब्जेक्ट होती है वो होती है मदर. तो नाउ द रोल ऑफ द मदर इज नॉट जस्ट टू ग्रेटिफाई द फिजिकल नीड्स, इंस्टिंक्चुअल नीड को नहीं, बट ऑल्सो दी साइकोलॉजिकल नीड्स विच आर देयर ऑफ द चाइल्ड. तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द सेल्फ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ द चाइल्ड एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. क्लियर है? वेरी बेसिक, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अब सबसे फेमस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट रिलेशन की थ्योरी दी है मेलेनी क्लाइन ने. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हु प्रोपाउंडेड दी ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी. गेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हु आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी. तो आप कोहोट और क्लाइन दोनों को ही चूज करेंगे. ठीक है, तो क्लाइन की एक सेल्फ हिस्ट्री भी है. ठीक है, जैसे क्लाइन है, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे बहुत रिजेक्शन दिया था. ठीक है, तो क्लाइन सेड दैट कि इनिशियल 5 to 6 months, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे फ्रॉइड है, उन्होंने क्या बोला, 5 साल में पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, 5 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बट क्लाइन ने क्या बोला, नहीं, जो शुरू के 5 से 6 महीने हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड शी बिलीव दैट जो बच्चे हैं दे आर बॉर्न विद, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी चूज अनदर पेन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हर every child is inborn with some active fantasy. ठीक है, एक्टिव फेबल, एक्टिव थिंकिंग. ठीक है, तो जो बच्चा है वो ऑलरेडी एक एक्टिव फैंटेसी लाइफ को हार्बर करेगा रादर देन दी इमेजेस. ठीक है, जैसे फ्रॉइड ने क्या बोला कि जो बच्चा है वो इफ दे आर इमेजिनिंग कि दे आर हैविंग द मिल्क, तो इट वुड ऑल्सो सेटिस्फाई देयर हंगर. तो ज़रूरी नहीं है दूध पीना. फ्रॉइड की थ्योरी में ड्राइव सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द थ्योरी ऑफ कोहोट एंड क्लाइन उन्होंने साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में ज़्यादा बात की. ठीक है, एंड उन्होंने बोला जो भी ये फैंटेसी बच्चा एक्सपीरियंस करता है बचपन में, एक्टिव फैंटेसीज जिनको उन्होंने बोला, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड एज कोहोट टॉक्ड अबाउट सेल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेयर इन क्लाइन इलैबोरेटेड अपॉन इनर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो जो एक्टिव फैंटेसी है वो कोई आउटवर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है या आउटवर्ड टूल नहीं है. दीज आर द इनर ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन द रिलेशनशिप दैट द चाइल्ड इज हैविंग with these inner fantasies and how it is satisfying their psychological needs. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक थ्योरी है, डिटेल में आई एम नॉट गोइंग. ठीक है, आई इफ़ यू वांट मैं एक PDF अटैच कर सकती हूँ बेसिक थ्योरीज का, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है उनके बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स उनके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं या उनके जो इनर ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू फॉर्म दी पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, जिनको हम ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी बोलते हैं कि हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स, हाउ द कैथेसिक्स दैट अ पर्सन इज हैविंग, हाउ दिस इज हेल्पिंग द चाइल्ड
इन व्हाट डू वी से फुलफिलिंग देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कि फ्रॉइड ने बात नहीं की थी। तो कोहुट ने सेल्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की एंड क्लाइन ने इनर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की। ठीक है, क्लियर है, बेसिक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनीवेयर प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सबको? सो इफ आई आस्क यू कि जो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरीज है वो किस पे मेन फोकस करती है, विल एनीवन बी एबल टू टेल मी कि क्या मेन फोकस है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी का? एनीवन एक वर्ड में बस बता दो जल्दी से, देन वी विल मूव अहेड। एनीवन? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो। आई नो बहुत नया टॉपिक होगा, नहीं पढ़ाते कॉलेजेस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी। अगर कहीं भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क, ठीक है? ओके, मानवी हैज़ रिटन interpersonal relationship with object and how it leads to personality development. Very good मानवी, very good। ठीक है, सो हाइंस कोहुट ने बोला जो हमारे सेल्फ ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे को हेल्प करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने में। एंड मेलेनी क्लाइन ने बोला कि हमारे इनर ऑब्जेक्ट, इनर फैंटेसीज हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को हार्बर करती हैं एंड इट इन रिटर्न फुलफिल्स आवर साइकोलॉजिकल नीड्स। वेरी गुड, ठीक है, आर वी गुड टू गो? क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि हु ऑल आर एसोसिएटेड विद द साइको एनालिसिस स्कूल या साइको डायनामिक स्कूल, तो आप कोहुट को, क्लाइन को, एना फ्रॉइड को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है, बिकॉज दीज थ्योरीज आर एक्सटेंशंस ऑफ द थ्योरी propounded बाय फ्रॉइड इटसेल्फ। ठीक है, आर वी गुड टू गो? शुड आई बिगिन विद द नेक्स्ट थ्योरी टुडे इटसेल्फ? अगर हैवी हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो। Are we good to go? Okay, does anybody feel that way? Everybody feels that way? जल्दी बता दीजिए, फिर we will need to 15 minutes बचे हैं, है ना? ठीक है, सो इट्स ओके, वी विल मीट अगैन टुमारो। टुडे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, ठीक है, वाई आई गेव अ लॉट, मतलब हमने पूरी एक क्लास ही डेडिकेट कर दी फ्रॉइड को। वाई? क्योंकि यहाँ पे वी जस्ट डिड नॉट रीड अबाउट द साइको एनालिसिस स्कूल, वी ऑल्सो रेड अबाउट the theory of personality which is propounded by Freud. We also read about the therapeutic techniques which are associated with the Freud and the another extensions of Freudian approach. जो आगे आने वाली यूनिट्स में हमें पढ़ना था हमने यहीं पे ही कवर कर लिया, क्योंकि हमने एक बार थ्योरी पढ़ी तो इट वाज इन सीक्वेंस, ठीक है। मे बी डे आफ्टर टुमारो ऑन थर्सडे, in the last 30 minute I will be keeping a 15 मिनट का टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे आई विल बी पुटिंग अ टाइमर, 2 मिनट का टाइमर ऑन ईच क्वेश्चन। यू ऑल विल हैव टू राइट डाउन एंड देन मतलब राइट डाउन दी ऑप्शंस विच आर देयर, या तो मैं शायद एक देखती हूँ, आई विल सी हाउ आई कंडक्टेड, बट जितना भी हमने कवर किया होगा टिल टुमारोज क्लास वी विल बी टेकिंग दैट। आई थिंक इन टुमारोज क्लास हम यूंग और एडलर कवर कर लेंगे, क्योंकि यूंग और एडलर की थ्योरीज इतनी इलेबरेटेड नहीं है, छोटी छोटी ही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनीवेयर प्लीज लेट मी नो, देन वी विल रैप अप द क्लास।
Clear? All right, everyone. Take care. Have a nice day. Bye bye.